Hello student, we are going to discuss here chapter number 4 of the class 8. Name of the chapter is materials. The name of the chapter is matter and non-matter. So firstly we will be discuss here what are the meaning of the materials, and then we will be classify them into the group like metals and the non-metals. Okay, so firstly if you will be see here the materials, so you have to remember that the materials means all the things which you see in your surrounding, everything like the wall, like the fan, like the clothes, books, pen, bed, almira, ठीक है, window, door, all the things which you see in your surrounding, that will be known the materials. I hope it's clear to you now. We will be see here how we will be classify all these material into these two group, metal and the non-metal. So firstly you have to remember for the classification we need a base. अगर हम क्लासीफाई करेंगे किसी चीज को तो उसके लिए हमें एक बेस चाहिए. ओके, किस बेस के अकॉर्डिंग हम उनको क्लासीफाई करेंगे. सो वी विल बी डिस्कस हियर दीज आर द बेस इज नोन एज द प्रॉपर्टीज. तो यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमें हेल्प करेगी इनको क्लासीफाई करने में, इनको डिवाइड करने में, ग्रुप करने में, कैटेगराइज करने में. ओके, सो वन बाय वन वी विल बी डिस्कस हियर these different type of the properties. वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. Now the first properties if you will be see here which help us to describe or to differentiate between the metal and non-metals, so that is not the, I will be right here, the electrical, and heating, conductivity. So you all have to remember that when we talk about the conductivity means the ability to conduct the electricity and the heating. There are some certain metals, there are some certain substance which can easily conduct the heat as well as the electricity. So those compound which can conduct the electricity and the heat, that will be known as the matter. So which compounds, which materials will show these ability, that will be known the metals. The second properties I think you have seen, जितने भी हमारे wires होते हैं, mostly I will be right here, like the wires which we use in our household wiring, they are generally made by the metals, like they are made by the irons और दे कैन बी मेड बाय द कॉपर्स. ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं आयरन वायर को बनाने में. क्यों? क्योंकि आयरन क्या हमारा मेटल्स है और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है. आयरन, कॉपर, ओके, लाइक द सिल्वर्स, लाइक द एल्युमिनियम्स, सो वी जनरली यूज इट. व्हेन वी टॉक अबाउट द हीटिंग कंडक्टिविटी, लाइक इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ द यूटेंसिल्स, सो आवर यूटेंसिल्स इज ऑल्सो मेड बाय द मेटल्स. हमारे यूटेंसिल्स किसके बने होते हैं? या तो वो स्टील्स के बने होंगे या वो एल्युमिनियम के बने होते हैं. ठीक है, कुछ हमारे यूटेंसिल्स किसके बने होते हैं, लाइक आयरन्स के भी बने होते हैं. ठीक है, आयरन, स्टील्स, एल्युमिनियम, कॉपर और सिल्वर तक के भी बने होते हैं, है ना. सो डेफिनेटली दीज आर द, दे हैव एबिलिटी टू कंडक्ट द हीट, क्योंकि उनके अंदर हीट को कंडक्ट करने की एबिलिटी होती है, इसीलिए वो हमारा फूड कुक कर पाते हैं, यानी कि बना पाते हैं, कुकिंग कर पाते हैं. सो सपोज इफ यू विल बी राइट हियर, सपोज ये हमारे पास फ्राई पैन है और जो फ्राई पैन है वो हमारा किसका है? स्टील्स का बना हुआ है. जब ये स्टील्स का है तभी तो ये हीट को कंडक्ट करेगा. अगर मैं इसको किसी दूसरे सब्सटेंस का बनाऊंगा तो वो हीट को कंडक्ट नहीं करेगा. ठीक है, तो ये हमारा क्या होना चाहिए? मेटल्स होना चाहिए, क्योंकि मेटल्स के अंदर एबिलिटी है हीट को कंडक्ट करने की. सो मेटल्स कैन कंडक्ट द हीट as well as metal can conduct the electricity. Okay, that's why we use it in our household. जो हमारे वायर्स होते हैं उनमें भी यूज करते हैं, यूटेंसिल्स बनाने में भी यूज करते हैं. नाउ वी विल बी सी हियर द सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स. तो सेकंड प्रॉपर्टीज मैं इसको इरेज करता हूँ, देन आई विल बी राइट हियर. The second properties of the metals, you have to remember that the metals are malleable. M-A-L-L-E-A-B-L-E. So metals are the malleables. So how they are the malleable and what are the meaning of the malleables? You have to remember that malleable means if we will beat on any substance, or I can say if we will use a hammers to beat any compounds, that will be convert into the thin sheet. Suppose करो मेरे पास कोई compounds है ये और मैंने इसको hammer से beat किया, और हैमर से बीट करने के बाद मैंने क्या कर दिया, इसको एक थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर दिया. आई विल बी जस्ट चेंजिंग इट्स शीट बाय द हैमरिंग.
So it will be convert into the sheet. I will be right here thin sheet. जब मैं इसको एक थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा बीट बीट करके, तो ऐसे मटेरियल्स जो इसके अंदर कन्वर्ट होंगे दैट विल बी नोन द मैलिएबल सब्सटेंस, मैलिएबल, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन द मैलिएबिलिटी। और इस प्रॉपर्टीज को हम बोलेंगे ये सब्सटेंस हमारे क्या है, मैलिएबल है, एंड दिस प्रॉपर्टीज इज नोन द मैलिएबिलिटी, MALLEABILITY। सो मैलिएबिलिटी विल बी प्रेजेंट ओनली इन द मेटल्स, जो हमारे मेटल्स होंगे दे विल बी शो द मैलिएबिलिटी, क्योंकि वही हमारे थिन शीट के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ द सिल्वर फॉइल, आपने देखा होगा जो बर्फी आती है उनके ऊपर एक सिल्वर फॉइल लगी होती है, वो काफी थिन शीट होती है, ओके, दैट इज द मैट बाय द सिल्वर। इफ यू टेक द अनदर एग्जांपल लाइक एल्युमिनियम फॉइल, वी जनरली यूज द एल्युमिनियम टू मेक द वेरी थिन शीट, जिसको हम कहाँ यूज करते हैं, फूड पैकेजिंग के अंदर, फूड पैक करते हैं एल्युमिनियम शीट का, ठीक है, वो काफी ज्यादा थिन होती है। सो डेफिनेटली वी कैन बी मेक द वेरी थिन शीट ऑफ द एल्युमिनियम, लाइक द वी कैन ऑल्सो मेक द सिल्वर थिन शीट, है ना, और गोल्ड की भी थिन शीट बना सकते हैं। बहुत सारे मेटल्स हैं जिनके हम थिन शीट यूज करते हैं। आयरन का भी आपने देखा होगा, जो हमारी शीट्स होती हैं रूफ के ऊपर जो हम फ्लोरिंग करते हैं, है ना, रूफिंग करते हैं, तो वो भी हमारी आयरन की शीट ही यूज की जाती है। सो मेटल्स कैन बी कन्वर्ट इनटू द थिन शीट एंड दिस प्रॉपर्टीज विल बी नोन द मैलिएबिलिटी, ओके। जैसे अगर हम यूटेंसिल्स की बात करें तो यूटेंसिल्स में भी हम थिन शीट के अंदर कन्वर्ट करते हैं कुछ हमारे मेटल्स को। सो दिस विल बी द प्रॉपर्टीज नोन एज द मैलिएबिलिटी। I hope it's clear. Now students we will be talk about the another properties. मैं इसको लिख देता हूँ second properties. अब हम बात करते हैं third properties of the metals की। Third properties you will be remember here that will be known the ductility. DUCTILITY. Ductility is the name of the ductility is the name of the properties, and those substance I will be just tell you what are the meaning of the ductile. Suppose this is the a compound here, एक compound है यहाँ पर, और मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट किया और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया थिन शीट के अंदर। ये काफ़ी थिन शीट के अंदर, थिन शीट नहीं, थिन वायर के अंदर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, ओके। सो इफ एनी मेटल्स और इफ एनी कंपाउंड कैन बी कन्वर्ट इनटू द वायर, so that properties will be known as the ductility। यानी कि ये मेरा जो metals था, ये जो मेरे compounds था, वो वायर के अंदर कन्वर्ट हो गया, इसको हम बोलेंगे ductile। so this compound is the ductile, ductile is the name of the compound and the name of the property is the ductility, and ductility that will be found only in the metals। तो जितने भी हमारे metals होते हैं वो सारे के सारे ductility को शो करेंगे, ठीक है। यानी कि जो हमारे वायर्स बने होते हैं, वायर किसके बने होते हैं, या तो कॉपर या आयरन या हमारा एल्युमिनियम हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर द सम सर्टेन मेटल्स विच वी यूज in making the ductility। So most of the metals, or I will be say almost all the metals can be used in making the wires except the mercury। I will be discuss here some exceptions case जो हमारी ये properties को follow नहीं करते हैं। So अब I think it's clear to you the meaning of the ductility, and now we will be discuss here the fourth properties। Fourth properties of the metal is, we have already discussed the malleability, ductility, and we will be come to the luster properties, LUSTR, luster properties। and lusters means होता है the shiny surface, shining, SII, ये गलत हो गया, इसको इरेज कर देते हैं, SHINING, जो शाइनिंग सरफेस, जो चमक मारे, दूर से चमक मारे, उसको हम बोलते हैं लस्टर प्रॉपर्टीज, ओके। सो मोस्ट ऑफ द मेटल इफ यू विल बी सी लाइक द कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, जितने भी हमारे मेटल्स हैं उनके अंदर लस्टर प्रॉपर्टी होती है, शाइन मारते हैं। इसलिए हमने देखा है जितने भी हमारे मोस्टली ऑर्नामेंट्स होते हैं लाइक द ज्वेलरी, दे आर मेकिंग बाय द मेटल्स। ऑर्नामेंट्स बनाने में, ज्वेलरी बनाने में क्या यूज करते हैं, गोल्ड यूज करते हैं, silver use करते हैं, because they have a shiny surface। sometimes we use the platinums, okay। so reason is because they are the shiny in the natures, okay, they have a shiny surface and this properties will be known as the luster properties। और इन materials को हम क्या बोलते हैं, lustrous compound और lustrous materials, ठीक है। जो हमारे properties luster show करेंगे उसको हम बोल देते हैं lustrous compound, LUSTROUS।
So I hope it's clear. Now we will be talk about the fifth properties of the matter. Fifth properties की अगर हम बात करेंगे, so you can be say here the strength is strength. So this is the another property of the metals, and strength means the kind of the power, kind of the strongness. So most of the metals are the very strong. The reason is, suppose if I give you the iron nail, and if you will be try to break it, you cannot be break, because iron is a very strong, बहुत ज़्यादा पावरफुल है. आयरन की नेल को आप ब्रेक नहीं कर सकते. इसी तरह से कॉपर हो गया, कॉपर के जो यूटेंसिल्स हो गए, कॉपर के वायर हो गए, यू कैन नॉट बी easily break them because they are the very strength, they are the very strong. So metals are very strong in the natures, they can be hold so many so much weight on it. Okay, so that's why they use it in the making of the iron bridge. हमने देखा होगा जितने भी हमारे ब्रिज होते हैं जनरली वो आयरन के बने होते हैं. ठीक है, तो ब्रिज का काम क्या होता है, लो वेट को लोड करना काफ़ी ज़्यादा. अगर हमारे वो नॉन मेटल्स के बनेंगे या ऐसा कंपाउंड्स जिसके अंदर एबिलिटी नहीं है वेट को होल्ड करने की, स्ट्रेंथ कम है उसकी, तो वो हमारा वर्क नहीं करेगा. ठीक है, सो आयरन कॉपर, सो दे हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ. सो दैट्स वाई वी यूज इट इन द मेकिंग ऑफ द ब्रिज, वी यूज इट इन द मेकिंग ऑफ द व्हीकल्स लाइक द कार, रेलवे, है ना. सो डेफिनेटली वी यूज इट इन द मेकिंग ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स. जैसे हमने ब्रिज की बात करी, रेल की बात करी, व्हीकल्स की बात करी, दे आर जनरली मेड बाय द metals. उसके पीछे रीजंस क्या है, बिकॉज metals आर द वेरी स्ट्रेंथ, वेरी स्ट्रॉन्ग. okay, they will not be easily break. Now I hope it's clear. We come to the sixth properties. Sixth properties of the metals is the sonorous. Sonorous. So sonorous, when we talk about the sonorous, sonorous means the sound. Sono means sound, you have to remember. So when we produce the sound by a metal, metals के साथ जब हम साउंड को प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा साउंड कैसा होगा, काफ़ी ज़्यादा श्रिल साउंड होगा. श्रिल मीन्स काफ़ी ज़्यादा तीखा साउंड होगा, लाइक ए रिंगिंग बेल. if you will be ring the bell, so you will be get the point how the sound produced by a bell. It's a very like shrill sound. Okay, suppose if you will be take the two compound here, one is the iron metals, or one iron rod I can be take here, and second is the wooden block. Okay, and when you will be hit by anything, or by anything on the both side, okay, both iron rod as well as the wooden, so you will be just listen a sound, different type of the sound in the iron rod, वो काफी कैसा होगा, श्रिल होगा, sharp sound होगा, and in the woodens that will be the kind of dull sound. Okay, so it will not be the shrill sound. So we can say the most of the metals or almost all the metals will be produce shrill sound, and that's why we call them they are the sonorous. इसीलिए हम उनको क्या बोल रहे हैं, sonorous है. कैसा साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, shrill sound, ringing sound, जैसे हमारी रिंग करती है, बेल रिंग करती है. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. नाउ स्टूडेंट्स वी विल बी टेक ए शॉर्ट रिवीजन व्हाट वी हैड डिस्कस हियर एंड द डिफरेंस बिटवीन द मेटल्स. मेटल्स हैज सम सर्टेन प्रॉपर्टीज. मेटल्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की. फर्स्ट इज द कंडक्टिविटी, दे विल बी कंडक्ट द electricity as well as the heat. They will also conduct the heat. Second properties we had discussed the lusters like the shiny surface and malleable, यानी कि ये कन्वर्ट हो सकते हैं थिन शीट के अंदर जितने भी हमारे मेटल्स हैं. एंड द डक्टाइल प्रॉपर्टीज ऑल्सो, स्पेस नहीं है मैंने इसलिए यहाँ पर लिख दिया डक्टाइल प्रॉपर्टीज. एंड दे आर सोनोरस, यानी कि सिरिल साउंड प्रोड्यूस करेंगे, SONORUS, sonorous. And they will also so like the ductile, lustrous, malleables, and they have a high strength. Okay, these are the six properties in the metals. When we talk about the non-metals, non-metals do not show these kind of the properties. They are just opposite to the metals. They are non-conductor of the electricity. I will be right here the non-conductor, non-conductor of electricity as well as the heat.
सो ये हमारे हीट को भी कंडक्ट नहीं करते और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं कर सकते। ये दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट दे आर ऑल्सो यूज ऑफ द नॉन मेटल्स। अगर हम बात करते हैं यूटेंसिल्स की, डेफिनेटली सपोज करो ये यूटेंसिल्स है हमारे पास, ये मैंने यूटेंसिल्स ले लिया यानी कि फ्राई पैन्स ले लिया, और फ्राई पैन्स के अंदर आप देखोगे सो फ्राई पैन इज जनरली मेड बाय द मेटल्स बिकॉज वी हैव टू यूज इट टू कुकिंग द फूड। फूड को कुक करने में यूज कर रहे हैं, इट हैव टू बी वर्क एब्जॉर्ब द हीट, इसीलिए हमारा इसका यूज है, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, खाना बनाएगा। बट द हैंडल ऑफ द but the handle of the yes fry pan, it is made by the some kind of the plastics। ये कोई प्लास्टिक से बना होता है, ब्लैक कलर की या कुछ अदर कलर्स की, और जो प्लास्टिक से समटाइम्स इट मेड बाय द लाइक वुडन ओके सम अदर पार्ट्स, जो भी हमारे अदर कंपाउंड्स है, दे आर द नॉन कंडक्टर्स एंड दीज नॉन कंडक्टर इज नोन एज द non-metals like the plastic, like the woodens which we are using in making of the handles। I hope it's clear, they are the use of the metal as well as the non-metals। तो जो हमारे handles हैं ये हमारे नॉन कंडक्टर्स के बने होते हैं, इनका भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है हमारी लाइफ में। ओके, दे आर द नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज द इलेक्ट्रिसिटी। सपोज करो ये वायर है हमारे पास, और वायर के ऊपर जो कोटिंग की गई है, कोटिंग किसकी की आती है, जनरली रबर या प्लास्टिक्स की। सो वायर इज कोटेड बाय द प्लास्टिक और रबर, द रीजन इज टू जस्ट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द करंट। ओके, सो वी कैन से there are the use of the non-metals in protecting us or prevent us from the electricity। I hope it's clear. Now students, we will be see here the luster properties। So non-metals are also the non-lusters, I will be right here, non-lusters। Luster means the shiny surface, so non-luster means non-shiny surface, so they are not the shiny surface like the wooden, like the plastic, like the curtains, like the clothes, like the wall। There are so many examples, if you will be compare with the metals, they have a non-lustrous properties, dull properties होती है इनकी, इसको non-lustrous को हम dull भी बोल सकते हैं, they have a dull appearance। if you will be compare the metal and the non-metals, like you are comparing the copper with paper, so you will be see the copper has a very shiny surface comparative to the paper, plastic, wood। Okay, so these are the non-metals because they are the dull appearance। And another one you will be see the malleable properties। Malleable properties definitely you have to remember, इसको मैं erase कर देता हूँ, the malleable is not present in the non-metals। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मेलेबल्स भी नहीं होते हैं, मीनिंग दे कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू द थिन शीट। जैसे सपोज करो आपके पास वुडन ब्लॉक है, या आपके पास स्टोन्स है, या हो सकता है आपके पास प्लास्टिक से, व्हेन यू विल बी बीट इट बाय द हैमर, सो व्हाट विल बी हैपेंस, दे विल नॉट बी ब्रेक डाउन इनटू द थिन शीट, एक थिन शीट के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगी, ये डायरेक्टली ब्रेक हो जाएंगे, सो दे कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू द थिन शीट, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल्स, इनके अंदर मेलेबल प्रॉपर्टीज नहीं होती है। अनदर वन इफ आई विल टेल यू लाइक द डक्टिलिटी, डक्टिलिटी इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन द नॉन मेटल्स। तो जितने भी हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की वो सभी उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, किनमें, नॉन मेटल्स के अंदर। अगर हम नॉन मेटल्स को वायर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वायर में नहीं कन्वर्ट होंगे, जैसे प्लास्टिक्स हो गया, जैसे हमारा सॉल्ट सैंड हो गया, या सोइल हो गई, या स्टोन्स हो गया, वुड हो गया, ठीक है, ये भी हमारे वायर के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे। अगर हम इनको बीट करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएंगे, बट दे कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू द वायर। नाउ अनदर प्रॉपर्टीज लाइक द स्ट्रेंथ। सो नॉन मेटल्स हैज ए वेरी वीक स्ट्रेंथ, इनकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा वीक होती है, ये ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ज़्यादा वेट को। जैसे प्लास्टिक्स हो गया, वुडन हो गया, कर्टन्स हो गया, क्लॉथ्स हो गया, तो ये डेफिनेटली वीक हैं, वीक स्ट्रेंथ है। वी कैन नॉट यूज देम इन द मेकिंग ऑफ द ब्रिज और द व्हीकल्स बिकॉज दे आर द लो टेंसाइल, ज़्यादा फोर्स पड़ेगा इनके ऊपर, ये ब्रेक हो जाएंगे। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ अनदर प्रॉपर्टीज वी कैन बी से दैट जो जनरली मेटल्स होते हैं दे आर द हार्ड, आई विल बी राइट हियर, मेटल्स हमारे कैसे होते हैं, यहाँ पर मैं थोड़े से एक्सेप्शंस लिखूंगा एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट मेटल। सो मेटल्स आर जनरली हार्ड, सॉलिड, मोस्टली सॉलिड होते हैं। ओके, एक्सेप्शन है यहाँ पर मरकरी का, मरकरी हमारा लिक्विड फेज के अंदर होता है बट ये भी मेटल से।
ओके, क्यों? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा कम होता है, जो रूम टेम्परेचर्स पे लिक्विड फॉर्म के अंदर मिलेगा हमें, इसीलिए हम उसको बोलते हैं मरकरी इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट्स। ये हमारा थर्मामीटर में यूज होता है, एंड दैट इज द सॉलिड बट इट फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर्स, एंड अदर ऑल द metals will be hard. In the non-metals, non-metals are the solid as well as the liquid as well as the gases compound. कुछ हमारे सॉलिड भी हैं, कुछ लिक्विड भी हैं, कुछ गैसेस भी हैं। सॉलिड के एग्जांपल लाइक द कार्बन, लाइक द sulfur, like the phosphorus, okay, not the sulfur, like the phosphorus, carbon, and like the silicon. So these are the some certain solid compound. लिक्विड भी प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड के अंदर जैसे बोल सकते हैं हम लाइक द ब्रोमीन, एक हमारा ब्रोमीन नॉन मेटल्स है, दैट विल बी फाउंड इन द लिक्विड स्टेट्स, ओनली वन ही है ब्रोमीन, ओके, आपको याद रखना। गैसेस के अंदर भी बहुत सारी हैं, लाइक द हाइड्रोजन गैस, लाइक द हीलियम, नियोन, एंड so many gases like the xenon, helium, hydrogen, okay, and nitrogens. So these are the some certain gases which is non-metals and they found in the gaseous state. But metals हमारे solid state में present होते हैं except the mercury that found in the liquid state. Some another exceptions in the conductivity. I will be right here. Conductivity. So we had discussed all metals are the conductive और ऑल द कंडक्टर्स, यानी कि ये हीट भी कंडक्ट करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेंगे। बट रिमेंबर इन द नॉन मेटल्स देयर आर मोस्टली, और आई विल बी से ऑलमोस्ट ऑल द नॉन मेटल्स आर द नॉन कंडक्टर, बट एक्सेप्ट वन, यहाँ पर एक नॉन मेटल से जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, एंड दैट इज नोन द ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। ये ग्रेफाइट हमारा कार्बन का बना है, बट इट विल बी कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जनरली आई थिंक यू हैव सीन, जो हमारा पेंसिल्स में ब्लैक कलर का पोरस सब्सटेंस होता है, ब्लैक कार्बन, okay, that is the known the graphite, and it will be conduct the electricity. It is the non-metal. So this is the exceptions here. I am talking about the some exceptions conditions. The another one, if you will be see here, like the I will be say here, the conductivity is complete. Luster properties, there are also some exceptions, यानी कि एक अनलक कंडीशन से मेटल्स हमारे सारे के सारे लस्टर्स होते हैं, शाइनी सरफेस होती है, ठीक है, बट हमारा नॉन मेटल्स के अंदर एक लस्टर्स होता है जिसका नाम होता है आयोडीन। Iodine is a non-metal, but it has a shiny surface comparatively other non-metals. Okay, so iodine is also the luster, but it is the non-metal. Now I am just seeing there, is there any other exceptions? Okay, I think it's a complete here. And now students, I hope it's clear to you. We had discussed today the physical property. ये जो भी हमने पढ़ा ये सारी की सारी physical properties of the metal and non-metals. Okay, and in the next class we will be discuss some chemical properties of the metal and the non-metal. How we can be classified by some chemical properties. Okay, I hope it's clear to you. Thank you students.